Hello dear students, welcome to the e-learning session of Rajshastra. In today's lecture, we will discuss about Rajat. Rajat is placed in Shuddha Loh as per the classification by Rasratna Samuchaya. Hindi name of Rajat is Chandi. Its English name is silver and Latin name is argentinum. Specific gravity of Rajat is 10.5. Its melting point is 960.5 degree Celsius. Its hardness on Mohs scale is 2.5 to 3. So Rajat is also a soft metal like gold. Synonyms of Rajat. Main synonyms of Rajat are Ruchir, Ropya, Tar, Saud, Shubhrak, Chandraloh, Chandrahas, Rupak, Durvarnak, Mahashubh, and all synonyms of moon are also used for Rajat metal. Like gold, silver is also a soft, malleable and ductile metal. It is an excellent conductor of heat and electricity. Color of silver metal is white but may have grey, black, bluish black tarnish due to effect of atmosphere. Chemically, the tarnish is due to the formation of oxide or sulfide. It has metallic luster, silver white streak and Hackley fracture. Hackley fracture means the fractured surface are sharp and uneven. Silver is readily soluble in nitric acid. Here one more new term is streak. To identify streak, what we use, our tool is streak plate, that is white unglazed porcelain plate. And what is the procedure? We simply rub the sample on the surface of a streak plate and then observe the color of the powder left by the trail, and this color is called as the streak of that particular sample. Rajat is readily soluble in nitric acid. As per Ayurvedic Pharmacopoeia of India, the standard sample of Rajat should contain not less than 98.5% silver when analyzed by AAS, atomic absorption spectrometry. It may contain the following within plus minus 20%: copper 1.40%, sulfur in traces and gold in 0.001%. Sources of silver. Silver is found in both native and compound form. In native form, it is occasionally 99% pure, but generally containing copper, gold, and other metals. Mainly it is obtained from its compound form. Largely Rajat is derived from smelting of lead, zinc and copper ores, which are argentiferous. Native Rajat is much rare in occurrence than native Swarn. Main ores of Rajat are argentite, AgS, cerargyrite, polybasite and prostite. Occurrence. Main silver producing countries are Mexico, Australia, Norway, America, etc. In India, there are no Rajat deposits as such. All galena deposits of Jawar, Rajpura, Deri and Rampura are known for Rajat. So Rajasthan is the lead producer. Here we obtain Rajat from this galena.
that is the lead ore. Mythological origin. According to ancient texts, silver is believed to have originated from the semen of Chandrama. According to Ayurveda Prakash, it is said to have originated from the falling drops of tear from the third eye of Lord Shiva on becoming angry. Types. 3 varieties of Rajat have been mentioned in Ras texts. These are, first one is Sahaj or native. We may correlate Sahaj variety with the native form, which occurs at Kailash Parvat, and it is considered the best variety. Second one is Khanij, which is correlated with the mineral, or it occurs at Himalaya Parvat and it is better. Kratrim or artificial variety, which occurs through mercurial transformation from lower metals. Of these, the Sahaj is claimed to be rare and the Khanij is common and is said to possess Rasayan property. The Kratrim is also rare and said to be produced through transformation of lower metals by the effect of mercury. Good characteristics of silver are approval features. A good sample of Rajat, your silver, should have following characteristic: solid, clear, heavy, smooth without any cracks, soft, it is a soft metal, hardness ranges between 2.5 to 3, and white on heating and cutting. It should be as white as conch shell and it should be free from cracks. Silver has not taken of following characteristics. Agrahya Lakshan. The silver which becomes red, yellow or black in color on heating should not be taken. Rough silver and which cracks on hammering, which is light and stiff, should not be taken for medicinal use. Shodhan of Rajat. Shodhan is of two types, Samanya Shodhan and Vishesh Shodhan. Samanya Shodhan will be performed by following the method which we discussed earlier in Swarna presentation and in introduction chapter. That is Tele Takre Gavam Mutre Ar Nale Kulathaje Kramat Nishechayet Taptam Drave Dravetu Saptadha Swarna Adi Lohopatranam Shuddhi Resha Vishasyate. Now come to the Vishesh Shodhan. Nagin Tankanen ev Vapitam Shuddhim Rachati Taram Trivaram Nikshiptam Tele Jyotishmati Bhave. So here we can see the process we use is Nikshiptam, that is Nishek process, and media is Tele Jyotishmati Bhave, Jyotishmati Tel. Now what is the procedure? First, Ashuddha Rajat is taken, melt it in Musha, then add equal quantity of Shuddha Nag, lead, and Shuddha Tankan, borax. Give a strong heat and then quench it in Jyotishmati Tel. This process is repeated for 3 times and then we will get Shuddha Rajat. So once again, आपको सबसे पहले एक मूषा में अशुद्ध रजत को लेकर मेल्ट करना है, फिर उसमें इक्वल क्वांटिटी में शुद्ध नाग और शुद्ध टंकण को मिलाना है, फिर उसको काफ़ी स्ट्रोंग हीट देनी है और तब उसके बाद उसको ज्योतिष्मती तेल में निषेक करना है और ये टोटल प्रोसेस हमको 3 बार रिपीट करना है.
हाउ टू प्रिपेयर भस्म। धातुओं के लौह वर्ग के इंट्रोडक्शन चैप्टर में भस्म सामान्य मारण के तरीके में आपको बताया गया है तारश्च माक्षिक रसेनहन्यात, अर्थात रजत भस्म के लिए माक्षिक को सहायक द्रव्य के रूप में बताया गया है। इसलिए रजत भस्म के निर्माण के बहुत सारे मेथड्स में से माक्षिक को यूज करते हुए जो मेथड है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। स्नूहि क्षीरेण संपिष्टम माक्षिकम तेन लेपियेत। फर्स्ट हमको क्या करना है, स्नूहि क्षीरेण संपिष्टम माक्षिकम, माक्षिक का पेस्ट बनाना है। और वो पेस्ट किसकी सहायता से बनेगा, स्नूहि क्षीर की सहायता से। तो शुद्ध माक्षिक का हमें भावना देनी है स्नूहि क्षीर की, जिससे कि वो पेस्ट फॉर्म में आ जाए। तेन लेपियेत, फिर उसका लेप करना है किसके ऊपर, ताल कस्य प्रकारेण तार पत्राणि बुद्धिमान, हमें उसका लेप करना है शुद्ध रजत के पतले पतले पत्रों के ऊपर और तब उसको सूखने देना है। चतुर्दश पुटेर एवं तारम भस्म प्रजायते, और सूखने के बाद उसको हमें 14 पुट की अग्नि देनी है, तो इससे हमें रजत भस्म की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा मेथड, शुद्ध रजत 1 पार्ट। सबसे पहले हमें शुद्ध रजत को लेना है, उसको पिघलाना है एंड ऐड शुद्ध पारद इनटू इट, और फिर उसमें इक्वल अमाउंट में शुद्ध पारद को ऐड करना है। रब टुगेदर विद नींबू स्वरस फॉर 1 डे एंड मेक पिष्टी, इसको हमें लगातार 1 दिन तक मर्दन करते रहना है, जिससे कि पारद और रजत दोनों आपस में अच्छी तरह से मिलके एक पीठी के जैसा हो जाए, एक पिष्टी जैसा हो जाए, अलग से हमें दोनों द्रव्य अलग अलग ना दिखे। देन वॉश इट विद वाटर, उसके बाद इसे अच्छे से पानी से धो लेना है। फिर इसके बाद हमें इसमें क्या ऐड करना है, शुद्ध गंधक 1 पार्ट, शुद्ध हरताल 1 पार्ट। इसके बाद हमें इसमें शुद्ध गंधक और शुद्ध हरताल ये दोनों इक्वल अमाउंट, जो कि हमने शुरू में रजत और पारद भी 1 पार्ट लिए थे, उतने ही समभाग में हम गंधक और हरताल लेंगे और उसको अच्छे से मर्दन करेंगे। जब ये सब मिलकर एक रूप हो जाए तब हमें जैसा हमारा पुट देने का जनरल मेथड है उसको यूज करते हुए स्वअल्प पुट देना है। और कितनी बार, केवल 3 बार। स्वर्ण और रजत की भस्म बनाने के लिए आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही बताया गया है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा अग्नि की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ण रूप्य बधे गेयम तम कुक्कुट आदिकम, कुक्कुट पुट की अग्नि या फिर यहाँ स्वल्प पुट बताया गया है, उसकी अग्नि से भस्म बनाने का विधान है। नाउ कलर ऑफ भस्म, योग रत्नाकर ने जो भस्म के वर्ण के लिए बताया है उसमें कहा गया है स्वर्ण चंपक वर्ण आभम कृष्णत्वम तार ताम्रियो, कृष्णत्वम तार ताम्रियो, तार अर्थात रजत, तो रजत और ताम्र इन दोनों की भस्म कृष्ण वर्ण की होती है। तो जो हमारी भस्म प्रिपेयर होगी वो कृष्ण वर्ण की होगी। इसके अतिरिक्त जो भस्म के जितने भी हम स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं वो सब उसमें होने चाहिए, रेखापूर्ण, निरुद्ध, अपुनर्भव, ये सब परीक्षाओं पर हम भस्म को टेस्ट करते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रजत, रूप्यम विपाक मधुरम तुवर अम्लसारम शीतम सरम परम लेखनकम च रुच्यम। रूप्यम विपाक मधुरम, रजत भस्म जो है वो मधुर विपाक होती है। तुवर, तुवर कषाय रस के लिए कहते हैं, रस इसका कषाय और अम्ल होता है। शीतम, शीत वीर्य होती है। सरगुण वाली होती है और कर्म में लेखन होती है। रुचिकारक होती है। स्निग्ध होती है, स्निग्धम च वात कफजित, स्निग्ध होती है, वात और कफ को जीतने वाली होती है। जठराग्नि दीपी, जठराग्नि के बल को बढ़ाने वाली होती है, दीपन गुण युक्त होती है। बल्य है, परम स्थिर वयस्करणश्च, वयः स्थापन है,
अर्थात रजत भस्म भी हमारी रसायन गुणों से युक्त होती है, वह स्तंभक का काम करती है। मेध्यम, और ये एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ये रजत भस्म हमारी मेध्य होती है। रोप्यम शीतम कषाय अम्लम स्निग्धम वातहरम लघु रसायन विधानेन सर्व रोग अपहारकम। रसरत्न समुच्चय ने कहा है कि अगर रजत भस्म का उपयोग रसायन विधि से किया जाए तो यह समस्त रोगों को हरने वाली होती है। रस, गुण, वीर्य, विपाक ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कर्म में वात कफ दोष शामक, जठराग्नि दीपक, बल्य आयुष्य अर्थात वह स्तंभक, मेध्य बुद्धिवर्धक, रसायन विधि से प्रयोग करने पर सर्व रोगों को हरने वाली, दहाहर शाखागत दहा को विनाश करने वाली होती है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका एक्शन होता है वो है गर्भाशय शोधक। गर्भाशय के सभी विकारों में रजत भस्म का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त रस तरंगणी में रजत भस्म के लिए विशिष्ट गुण बताते हुए कहा गया है कि रजत भस्म कोष्ठगत बढ़ी हुई वात का शमन करती है, रस रक्तादि धातुओं में संचित पित्त और जत्रु के ऊपरी भाग में प्रकुपित कफ को शांत करती है। अर्थात तीनों दोषों पर इसका एक्शन बताया गया है। इसके अतिरिक्त मेध्य गुण के कारण ये अत्यंत क्षीण बुद्धि, स्मृति एवं साहसहीन व्यक्तियों के लिए तथा शिरोभ्रम से दुखी मनुष्य के लिए श्रेष्ठ होती है। शिरोभ्रम अर्थात हेडेक में सूर्यावर्त, धाव, भेदक इन सब में भी रजत भस्म का यूज होता है। निरंतर अध्ययन अध्यापन कार्य करने वाले युवा पुरुषों तथा बालकों के लिए यह अति उपयोगी औषधि है। तो रजत के और एक्शंस के साथ रसायन गुण ये है ही, इसके अतिरिक्त आपको इसका मेध्य एक्शन और दूसरा ये शिरोभ्रम, मस्तिष्क के रोगों में भ्रम उन्माद, इसमें इसका यूज होता है, भ्रम उन्माद विनाशनम। रसामृत में रजत भस्म के गुणों को बताते हुए कहा गया है वृश्यम अर्थात ये बाजीकारक है, बलप्रद बल्य है, रुच्य है, भ्रम उन्माद विनाशनम और भ्रम और उन्माद का नाश करने वाली होती है। चंद्र ग्रह की प्रतिनिधि धातु है तो धारण करने पर चंद्र ग्रह के दुष्प्रभाव को नष्ट करती है। रजत भस्म की मात्रा 1/4 से 1 रत्ती तक रोगी के बल और काल का विचार करके प्रयुक्त करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रजत का प्रयोग स्वर्ण की ही तरह रजत के वर्क या तवक बनाकर भी किया जाता है। रजत वर्क भी शीत वीर्य, रस में कषाय और अम्ल, गुणों में सर और विपाक में मधुर होते हैं। रजत भस्म की भांति इनका प्रयोग बल्य, लेखन कर्म के लिए, रुचिकारक कर्म के लिए किया जाता है। ये भी कर्म में शुक्र में है हर, आयुष्य, विहस्थापक, वृश्य, मेधावर्धक और विशेष रूप से वात पित्त का नाश करने वाले होते हैं। इस टेबल में अनुपान भेद से रजत भस्म के इंडिकेशन बताए गए हैं, जैसे कि सूर्यावर्त और अर्धाव भेदक रोग में रजत भस्म को एला, चूर्ण और मिश्री के साथ उपयोग करने के लिए कहा गया है। शाखागत दहा रोग अर्थात हाथ पैरों में जलन होने पर रजत भस्म को मिश्री के साथ उपयोग करने के लिए बताया गया है। ये सब रेफरेंसेस रस तरंगणी के अनुसार है। और मेम्ब्रेनियस डिस्मेन्योरिया में रजत भस्म को शीर काकोली, चोक चीनी चूर्ण और रस सिंदूर के साथ प्रयुक्त करने के लिए बताया गया है। प्रमेह रोग में रजत भस्म को त्रिजात के साथ और समस्त गर्भाशय विकृतियों में रजत का प्रयोग टंकण, अभ्रक भस्म और रस सिंदूर के साथ करने के लिए कहा गया है। मेन फॉर्मुलेशंस ऑफ रजत आर सर्व ज्वर हर लोह, जय मंगल रस, प्रदरांतक रस, विजया परपटी, मकर ध्वजवटी and Frahatvat Chintamani. Thank you. This is all about Rajat. In next lecture, we will discuss about Tamra.